Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Hello. Can you hear me? Lloyd? Hello. Wait Yes. a minute. Lloyd, are you there? Yes, sir. Yes, you have to translate Yogeshji's. No, sir. No requirement. I will translate myself. Okay, no problem. No need to translate. Thank you very much. Thank you, Lloyd. Yogeshji will translate himself. No problem. तो योगेश जी, अभी आप जिस आईडी से आप अभी बात कर रहे हैं, इसको जी। छोड़ के जो दूसरी आईडी है उस पे मुझे Correct. access देना है। Yes, sir. Hold a second. ठीक है, मैं समझ। विनायक सर, महेश जी की पीपीटी नहीं चैट शेयर कर दीजिए प्लीज। मैं कर देता हूँ। हाँ जी सर, पीपीटी शेयर कर दीजिए सर। जी। Should I start, sir? वन सेकंड, एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप करना पड़ेगा ना। जी। ओके। देखिए, महेश जी ने वो शेयर कर दिया है पीपीटी। नहीं, आपने को रिकॉर्डिंग स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ेगा ना। कर दिया। ओके। मेरा जा रहा है। ओके, चलो। नीरज ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। जी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, नीरज ने किया। ठीक है सर। You can start. Yes, thank you. So welcome all to Saptarshi's Astrology's Master Series 3. And I have come up with a new topic. Like last time in Guru Purnima event, I took a topic like human pregnancy cycle and its relevance with Kalapurush Kundali. This time also, I'm taking a topic which is very new, very interesting, and no one has taken it before. That is chakras and its relevance with the houses, signs, and planets in a Kalapurush Kundali. So this webinar will be in Hindi as well as English. So Hindi as well as English viewers need not to worry about it. So we should start a session with prayers to Guru. I will recite a shloka and you can simply close your eyes and pray to your Guru. Sada Shiva Samarambha Shankaracharya Chamadhyamam Asmat Shri Guru Paryantam Vande Guru Paramparam. So now you just relax and listen to me carefully. My topic is chakras and its relevance with Kalapurush Kundali, its houses and the planets. So I will start with Hindi, then I will take the session in English. देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के लग्न स्थान से व्यक्ति के भौतिक शरीर को देखा जाता है। हम सभी इस बात को जानते हैं। तो इस संदर्भ में अगर हम 7 चक्रों की बात करें तो वह भी कुंडली में किसी न किसी स्थान से दर्शाए जाने चाहिए। तो इसी आधार पर मैंने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत की। मैंने इस पर रिसर्च किया है तथा यह रिसर्च मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि चक्र भी जो है वो उनका भौतिक शरीर पर अपना संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। तो स्वाभाविक है कि कुंडली में वह अपना विशिष्ट स्थान रखते होंगे। अगर चक्रों का अपने भौतिक शरीर पे, मनुष्य के भौतिक शरीर पे जो है पूर्ण नियंत्रण होता है, तो हमें भी यह देखना चाहिए कि कुंडली में हम चक्रों को किस स्थान से, किन राशियों से तथा किन ग्रहों से देख सकते हैं। यही प्रयास आज हम करने वाले हैं कि किसी जातक की कुंडली के माध्यम से उसके चक्रों की ऊर्जा को कैसे जाना जाए। Now in English, in astrology, the physical body of a person is seen from the ascendant of the horoscope. In this context, if we talk about 7 chakras, then they should also be represented from some houses, signs, and planets in the horoscope. Because the chakras have complete control over the physical body of a person, so naturally they must have its special place in the horoscope. This is the effort we are going to make today, that we will see how we can know
the energy of a person's chakras through analyzing his or her horoscope. षट चक्र निरूपणम योगाभ्यास अष्टांग योग से लेकर के आयुर्वेद तथा योग उपनिषदों में इन ऊर्जा चक्रों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ज्योतिष में भी श्री एच.एन. काटवे जी द्वारा अध्यात्म ज्योतिष में चक्रों का अभ्यास किया गया है, पर क्योंकि आज तक इस विषय पर बहुत कम संशोधन किया गया है, इसलिए आज मैं इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ कर रहा हूँ तथा आज आपको मूलाधार चक्र का कुंडली के भावों तथा राशियों से संबंध में आपको बताने वाला हूँ। In English, the theory of chakras is mentioned in various ancient scriptures like Shat Chakra Nirupanam, yoga practices, Ashtanga Yoga, to Ayurveda and Yoga Upanishad. So we also find the mention of these energy chakras in astrology. Shri H.N. Katwe has mentioned his research in his book named Adhyatma Jyotish. Very little work has been done on this subject till date, and that is why today I am trying to advance this subject, and today I am going to tell you the relationship of Mooladhara Chakra with houses and signs in a birth chart. इससे पहले कि हम इन चक्रों को जाने तथा मूलाधार चक्र का कुंडली से संबंध जाने, हमें पंचकोश तथा 7 चक्रों के बारे में कुछ आवश्यक बातें जानना जरूरी है, जिससे हमें यह पता चलेगा कि चक्र शरीर में कहाँ स्थित होते हैं तथा चक्रों का भौतिक शरीर पर क्या असर होता है। हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर कुल 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन से हैं यह तत्व? अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु एवं आकाश। इन 5 तत्वों से मानव का शरीर बना हुआ है। इसी को हमने भगवान कहा है। देखिए किस प्रकार से, अगर हम भगवान शब्द को देखें या इसका जो है इसको डिवाइड करें तो हमें देखने को मिलेगा भ यानी भूमि, ग यानी गगन यानी कि आकाश, व यानी वायु, अ यानी अग्नि तथा न यानी नीर तथा जल। तो इस प्रकार से भगवान शब्द हमने बनाया तथा एक प्रकार से भगवान शब्द के माध्यम से या भगवान के माध्यम से हम जो संपूर्ण ब्रह्मांड में पंच तत्व बने हुए हैं इनकी ही हम आराधना करते हैं। So in English, for English viewers, but before knowing the relationship of chakras with astrological birth chart, first we need to understand Panchakoshas and 7 chakras, with the help of which we will come to know where the chakras exist in the body and how do they function, what effect they have on a physical body, human body. We know that the human body is made up of Panchatattva, Panchatattvas, that is fire, air, water, earth and space. This is what is called as Bhagwan in scriptures. Now Bha stands for Bhumi, that is earth element. Ga stands for Gagan, that is Akash, that is a space element. Va as Vayu, that is air. A is Agni, that is fire element. Na is Neer, it means Jal, the water element. In this way, Bhagwan word is formed. So in this way, we are praying to God, which is in terms of Panchatattvas. Now the 5 layers or sheets of human body are, we can see in the picture, Annamaya Kosha, physical sheet, Pranamaya Kosha, which is called as breath sheet or energy sheet. You can call it as an energy body. Manomaya Kosha, that is emotional sheet. Vijnanamaya Kosh, that is intellectual sheet. Anandamaya Kosh, that is called bliss sheet. तो अगर हम इसे हिंदी में देखें तो आनंदमय कोश जो होगा, जहां हमें सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है, स्टेट ऑफ प्योर ब्लिस एनलाइटनमेंट इज सीन बाय आनंदमय कोश.
तो जिन 7 चक्रों की बात हम यहाँ आज करने जा रहे हैं वह ऊर्जा स्वरूप यानी एनर्जी फॉर्म में होते हैं तथा पंचकोशों में से ऊर्जा शरीर में या जिसे हम प्राणमय कोश कहते हैं सेकंड लेयर उनमें यह समाहित होते हैं। कुल 7 चक्र बताए गए हैं क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि तथा आज्ञा एवं सहस्रार चक्र। यह सभी 7 चक्र सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित होते हैं। 7 में से निचले 3 चक्र अर्थात मूलाधार, स्वादिष्ठान एवं मणिपुर चक्र शारीरिक तौर पर यानी अन्नमय कोश को आवश्यक तत्वों की आपूर्ति हेतु कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि चक्र कहाँ स्थित होते हैं, जैसे कि वह प्राणमय कोश में इनका ये स्थित होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि तथा आज्ञा एवं सहस्रार सुषुम्ना नाड़ी पर इनका स्थान होता है। और निचले जो 3 चक्र है मूलाधार, स्वादिष्ठान एवं मणिपुर, वह जो है शरीर में जो आवश्यक तत्व है उनकी आपूर्ति करते हैं। आपके भौतिक शरीर के आवश्यक तत्वों की यह आपूर्ति करते हैं। English viewers, there is a misconception with most of the people that chakras are the physical entity, but it is not. The chakras are in the energy form that we need to understand. Sir, somebody is there who is unmuted. Hello. Can someone mute Mr. Vinod Kumar? Can someone mute Mr. Vinod Kumar? Thank you. So there is a misconception that chakras are a kind of physical entity, but it is not like that. Chakras are in the form of energy. जो है वो निकलती आ रही है। There is again a background voice, please. केमिस्ट का तो खैर ठीक है, वो तो निकल Mute रहा है। everyone. ठीक है। और Hello. लेकिन Vinay ji. Sir, now you are on mute, sir. Yogesh ji, you are on mute. योगेश जी आप अनम्यूट कीजिए। योगेश जी अनम्यूट कीजिए। अभी बोलिए। Can you hear me now? Okay, fine. So the chakras exist on energy sheet or a breathe body, which we can call as an energy body also. There are 7 chakras in total: base chakra, sacral chakra, solar plexus, heart chakra, throat chakra, third eye chakra, and crown chakra. All the 7 chakras are located on Sushumna Nadi. The 3 chakras out of the 7 which are placed at the lower side, that is base chakra, sacral chakra, solar plexus chakra, works on the physical sheet or a Annamaya Kosha, that is the physical body directly. जिस प्रकार से लीवर अन्न को पचाकर उससे उत्पन्न हुए जीवन आवश्यक तत्वों को संपूर्ण अन्नमय शरीर में पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार से प्राणमय कोश में स्थित 7 चक्र वातावरण में समाहित ऊर्जा को प्राप्त करके उसे प्राणमय शरीर द्वारा अन्नमय शरीर में आवश्यकता अनुसार पहुंचाते हैं। तो 2 प्रकार से आपकी शरीर को ऊर्जा मिलती है, जैसे हम अन्न को खा करके पचाते हैं और जीवन आवश्यक तत्व हमें उस अन्न को पचाने के बाद हमें मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ये ऊर्जा चक्र होते हैं, 7 ऊर्जा चक्रों का मैंने जो यहाँ उल्लेख किया, वह वातावरण में समाहित जो भी ऊर्जा होती है उसको यहाँ पर एब्जॉर्ब करके आपके शरीर में जो है लाइफ फोर्स या प्राण शक्ति को वहां पर आपके शरीर में पहुंचाते हैं। सॉरी सर, स्लाइड्स मूव नहीं कर रही हैं मेरे ख्याल से। Fine. No, sir. That is not required because I've not come yet till that slide. So I'm just sharing the introduction part of it. Right, sir. Right. So I will be taking care of that. In between, you can also tell me. Thank you very much. So for English viewers, just as the liver digests the food and carries the essential elements of life produced from the process of digestion to the physical body, exactly the same way, the 7 chakras located in the Pranamaya Kosha or the energy body receives or collects the energy contained
in the surrounding atmosphere and carry it through the pranamaya body to the physical body of a person. This energy consumed via atmosphere by the chakras is also a life force required for physical, psychological, and spiritual functioning of the body. So that we need to know how chakras function and what do they do exactly. मूलाधार चक्र सृष्टि में समाहित 5 तत्वों में से पृथ्वी तत्व को दर्शाता है तथा शरीर में इसी तत्व की आपूर्ति करता है। मानव शरीर में बाल, नाखून, दांत एवं स्नायु का ऊपरी आवरण, मानव की अस्थियां, कोशिकाओं के ऊपर का आवरण इत्यादि के लिए पृथ्वी तत्व की आवश्यकता होती है, जिनकी आपूर्ति अन्नमय तथा प्राणमय कोश द्वारा की जाती है। तो जैसे हमने देखा कि यह पूरा ब्रह्मांड पंचतत्वों से बना है, उसमें जो है मूलाधार चक्र जो है यह खास करके पृथ्वी तत्व का इसमें प्रतिनिधित्व करता है। तथा शरीर में जो मैंने अभी अभी सभी अवयव बताए, या जैसे बाल, नाखून, दांत एवं अस्थियां, तो इनको जो पृथ्वी तत्व की आवश्यकता होती है, इसकी आपूर्ति मूलाधार चक्र के द्वारा की जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मूलाधार चक्र ही सिर्फ इनकी आपूर्ति करता है। हम जो अन्न पचाते हैं, हम जो अन्न खाते हैं, उसके द्वारा भी हमारे इन ऑर्गन्स को जो है पृथ्वी तत्व प्राप्त होता है। नाउ फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, द बेस चक्र और मूलाधार चक्र इंडिकेट्स अर्थ एलिमेंट इन द यूनिवर्स। Thus, it fulfills the requirement of earth element in physical body. The hairs, nails, teeth, bones, the upper covering of the nerves, and the covering of the cells inside human body requires the earth element, which is fulfilled by food intake as well as by base chakra by absorbing the earth element from cosmos. Now we are moving ahead to the मूलाधार चक्र। अब हम मूलाधार चक्र को विशेष तौर पे देखने जा रहे हैं। मूलाधार चक्र का तत्व है पृथ्वी। जिस प्रकार से एक वृक्ष की संपूर्ण शक्ति उसकी जड़ों में समाहित न होकर उसकी समाहित होती है, न कि उसके शाखाओं में। एक वृक्ष जो होता है उसकी संपूर्ण शक्ति जो है उसकी जड़ों में समाहित हुई होती है। अगर हम उसकी शाखाएं भी काट दें तो भी वृक्ष वैसे के वैसे फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम उसकी जड़ें काट दें तो फिर वृक्ष जो है टिक नहीं पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य की स्थिरता उसके मूलाधार चक्र से संबंध रखती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसके मूलाधार चक्र का आकार सिकुड़ जाता है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति का पृथ्वी तत्व कम होकर शरीर से मुक्त होने का समय उसका जो है निकट आ गया है। यह मूलाधार चक्र निर्देशित करता है। जब कभी व्यक्ति का मृत्यु का समय आएगा तो उसके मूलाधार चक्र का आकार छोटा छोटा होता जाएगा। For English viewers, the element of Mooladhara Chakra is earth. Just as the whole power of a tree resides in its roots and not in its branches, in the same way, the stability of a human being resides in Mooladhara Chakra. You will be surprised to know that as a person is approaching time of his or her death, the shape of his or her Mooladhara Chakra shrinks. This means that the time has come for a person to be free from the physical body represented by the earth element, the element of Mooladhara Chakra. For Hindi viewers, व्यक्ति के जीवन में स्थिरता तथा घनत्व पृथ्वी तत्व का ही प्रतीक है। मूलाधार चक्र के चिन्ह में दर्शाया गया चौकोन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक पीले रंग का चौकोन आपको इस सिंबल में देखने को मिलेगा। वह स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को दर्शाता है। सर स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके फाइन, होल्ड अ सेकंड।
Give me a moment. What happened, Yogesh ji? Yes, yes. क्या हुआ योगेश जी? कर रहा हूँ सर मैं, एक सेकंड दीजिए सर। हुआ? हो गया, ओके। हो गया, हो गया, हो गया। देख पा रहे हैं आप सभी? हाँ, फाइन। स्क्रीन आ रहा है सर? हेलो, Yes, sir. Yes, थैंक यू sir. वेरी मच। तो जो चौकोन आप देख पा रहे हो, मूलाधार चक्र का जो चिन्ह है उसमें एक पीला चौकोन आप देख पा रहे हो। तो ये चौकोन जो है स्टेबिलिटी का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। चार कोण चारों दिशाओं के प्रतीक होते हैं। For English viewers, stability and density in the life of a person is a symbol of earth element. The square shown in the sign of Mooladhara Chakra indicates stability from all four directions. अधोगामी त्रिकोण जो आप उसके ऊपर देख पा रहे हैं, स्काई ब्लू कलर का, नीले रंग का, तो इसमें त्रिकोण जो है शक्ति स्वरूप का प्रतीक है। अधोगामी त्रिकोण मूलाधार की वासना शक्ति के नीचे प्रवाहित होने का प्रतीक है, जो व्यक्ति को संसार से जोड़े रखती है। यह वासना शक्ति वही मोह माया की शक्ति है जो व्यक्ति को इस संसार से जोड़े रखती है। इसे हम ज्योतिष में कन्या राशि से तथा छठे स्थान से देखते हैं। अब यह मेरा तर्क है, सुनिए क्यों। छठा स्थान क्या है? षड रिपु दर्शाता है, जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। तो इत्यादि षड रिपु जो है व्यक्ति को संसार से बांधे रखते हैं। जैसे मूलाधार चक्र व्यक्ति को संसार से बांधे हुए रखता है, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है वासना को निर्देशित, वासना का प्रतीक है, तो वह व्यक्ति को संसार से बांधे रखता है। तो फिर ज्योतिष में हम इसे कन्या राशि से क्यों जाने, इसका मैं आपको तर्क दे रहा हूं कि उसमें षड रिपु होते हैं और षड रिपु ही वही काम करते हैं जो व्यक्ति को संसार से बांध कर रखने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अब इसका और एक तर्क मैं दूंगा कि जो कन्या से समसप्तक राशि है, एग्जैक्ट अपोजिट जो राशि है, वह राशि मीन है जो मुक्ति को दर्शाती है। तो कन्या क्या हो गई? वह मोह माया हो गई जो आपको संसार से बांध कर रखती है। इस प्रकार से हमें इसे देखना होगा। तो कन्या राशि का संबंध हमने पाया कि यह मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई राशि है। नाउ फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, a downward triangle, a triangle is a symbol of Shakti, which you can see inside the symbol of Mooladhara Chakra, which is in a sky blue color. It is the latent power in Tantra Shastra. The descending triangle in the sign of Mooladhara Chakra symbolizes the lust of a person, which keeps him connected to the world. This lust is nothing but the illusionary power called Moha Maya that keeps a person connected to this materialistic world. We see this in astrology from zodiac sign Virgo and from the sixth house. So what is the sixth house? Sixth house is nothing but a Shada Ripu, that is Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mad and Matsar, that is lust, anger, greed, attraction, ego and jealousy. The Shada Ripus keeps the person bounded to the materialistic world. Like Mooladhara Chakra binds a person to the materialistic world. In the same way, these Shad Ripus, which are lying inside the Virgo sign or a sixth house, they also work like a Mooladhara Chakra and they keep person bounded with the materialistic world. And that is why I say that if the zodiac sign Pisces is seen for the liberation, then why not the sign Virgo should be seen for materialistic bondages. So this way, Moha Maya should be seen from the sixth house of a Kalapurush Kundali. And we came to know that
Virgo sign is strongly associated with Mooladhara Chakra. Next, you can see now for Hindi viewers, जो 4 पंखुड़ियां आप देख सकते हैं मूलाधार चक्र के इस चिन्ह में, तो जो 4 पंखुड़ी वाला कमल है वह क्रमशः मनस, आपके मनस यानी माइंड, जिसको हम ज्योतिष में चंद्र के द्वारा देखते हैं, आपका चित्त यानी कॉन्शियसनेस, जिसे हम जुपिटर या बृहस्पति के द्वारा देखते हैं ज्योतिष में, बुद्धि, आपकी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, जिसे हम बुध ग्रह द्वारा ज्योतिष में देखेंगे, तथा चौथा अहंकार, जिसे हम ईगो कहते हैं, उसे हम ज्योतिष में जो है मंगल द्वारा देख सकते हैं। तो 4 पंखुड़ियों वाला कमल मानव चेतनाओं के इन 4 पहलुओं को दर्शाता है, जिन्हें व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने साथ ले आता है और नए शरीर में फिर से मूलाधार चक्र में उन्हें स्थापित करता है। For English viewers, we can see a 4-petal lotus in the symbol of Mooladhara Chakra. Lotus with 4 petals shows Manas, that is mind, which is represented by moon in astrology. Your awareness, that is your consciousness, that is shown by Jupiter in astrology, which we call our wisdom. Third is intellect, which is shown by planet Mercury in astrology. And lastly, the ego that we see from planet Mars in astrology. So the 4-petal lotus represents these 4 aspects of human consciousness, which the person brings with him after his death and re-establishes them in the Mooladhara Chakra in a new body. तो अब हम देखेंगे कि ये जो 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या तथा मकर, इनका मूलाधार चक्र से क्या संबंध बनता है तथा इन राशियों को मैंने मूलाधार चक्र से क्यों जोड़ा है, इसके तथ्य को हम जानेंगे। इसके पीछे के ढेर सारे तर्क मैं आपको आज यहाँ पर देने वाला हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 राशियों के साथ जो अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि लिखी गई है, उसको मूलाधार चक्र का स्थान बताया गया है। तो एक हुआ मूलाधार चक्र का स्थान, जो आप अष्टम राशि वृश्चिक में देख सकते हो, और 3 राशियां जो बाकी की हैं वह हुई उससे जुड़ी हुई राशियां कुंडली की। अब इनके बारे में मैं आपको तर्क दूंगा। मूलाधार चक्र 7 चक्रों में से सबसे निचला यानी बेस चक्र कहलाता है। पंच तत्वों में से पृथ्वी तत्व को यह चक्र दर्शाता है। ज्योतिष में पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं वह है वृषभ, कन्या तथा मकर। यानी एक समानता यहाँ पर आपको क्या देखने को मिली कि पृथ्वी तत्व जो है वह मूलाधार चक्र से दर्शाया गया है, तथा साथ ही ज्योतिष में भी जो है पृथ्वी तत्व की राशियां कौन सी है, वृषभ, कन्या और मकर। इस प्रकार से तर्क के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मूलाधार चक्र का जन्म कुंडली में अर्थ त्रिकोण की पृथ्वी तत्व की इन 3 राशियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये 3 राशियां कौन सी हैं, जो कि पृथ्वी तत्व की भी हैं तथा अर्थ त्रिकोण के नाम से भी जानी जाती है। अब देखिए, अगर आप वृषभ से देखेंगे तो वृषभ से व्यक्ति का धन देखा जाता है, सेविंग्स। कन्या से जो है स्वास्थ्य देखा जाता है। मकर से आपका कर्म देखा जाएगा। मनुष्य जीवन की यह 3 मुख्य बातें हैं जिन्हें वह हमेशा स्थिर बनाए रखना चाहता है। तो ये एक तर्क हुआ कि इस प्रकार से ये 3 राशियां मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है। दूसरी बात, जो काल पुरुष कुंडली के अलग अलग स्थानों से हम उसके अंगों को देखते हैं, उस प्रकार से अगर वृषभ को देखें तो वहां से आपको जो है काल पुरुष का गला या गले का हिस्सा, कन्या जो है कमर को दर्शाती है, तथा घुटने। अगर आप ठीक से विचार करें तो गला, कमर और घुटने, अगर एक छोटा बच्चा कहीं नवजात शिशु जन्म लेता है तो धीरे धीरे ये अंग उसके जो है स्थिर होने लगते हैं। पहले आप उसकी चिंता करते हो कि कहीं उसकी गर्दन को चोट ना आ जाए, फिर आराम से वह चलने लगता है, फिर उसके घुटनों में ताकत आती है। तो ये हमें अंग क्या बता रहे हैं? मानव शरीर के यह 3 मुख्य अंग शरीर को स्थिरता प्रदान करते हैं। इस बात को आप समझिए। तो इस प्रकार से यह पृथ्वी तत्व की स्थिर राशियां हैं और
जो है मूलाधार चक्र को यह दर्शाती है। इसके पीछे का तर्क मैंने आपको दिया और ढेर सारा तर्क मैं आपको देने वाला हूं कि इन 3 राशियों से मूलाधार चक्र का संबंध कैसे बनता है। उससे पहले मैं इंग्लिश व्यूअर्स के लिए जानकारी दे दूं। मूलाधार चक्र, द लोएस्ट ऑफ द 7 chakras, is also called as base chakra. Out of the 5 elements, it represents the earth element. The zodiac signs of earth element in astrology are Taurus, Virgo, and Capricorn. Thus, logically, we can say that the Mooladhara chakra is represented in the horoscope by these 3 earth trikona signs and the earth element signs. See how. Taurus is seen for wealth, Virgo is seen for health of a person, Capricorn is his karma. These 3 main things of human life into which he always wants to have a stability. So that is why I am associating these 3 signs with a Mooladhara chakra. My second logic is Taurus shows throat region, Virgo shows waist region, and Capricorn shows the knees of a person. These are the 3 main organs or the regions of a human body which gives stability to the body. So that's why these 3 signs are associated with Mooladhara chakra. This is my logic behind it. Stability is a basic characteristic of base chakra or a Mooladhara chakra, which we can see in all these 3 signs, zodiac signs. अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं ढेर सारे तर्क आपको दूंगा, तो हम यह भी देखेंगे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने वृश्चिक राशि को भी कोट किया है और वहां पे लिखा है कि मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र का स्थान जो है वह वृश्चिक क्यों है, इसका भी मैं आपको तर्क दूंगा, क्योंकि शास्त्र जो है सभी तर्क आधारित होते हैं। तो मूलाधार चक्र एक व्यक्ति में बसे भय की भावना से जुड़ा है। मूलाधार चक्र की विशेषता यह है कि इससे आपको व्यक्ति में बसी भय की भावना को देखना होता है। जब कभी कोई भी व्यक्ति भय की भावना से ग्रसित होता है तब उससे मूत्र या मल विसर्जन की क्रिया सहज रूप से हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे छोटे बच्चे को आप जोर की डांट लगा दो तो वो क्या कर देगा, वो सुसु कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष में भी डर या अननोन फियर्स को अष्टम स्थान या वृश्चिक राशि से देखा जाता है, जहां मूलाधार चक्र के स्थित होने की बात हम कर रहे हैं। साथ ही मल एवं मूत्र विसर्जन के शारीरिक अंग भी वृश्चिक राशि तथा अष्टम स्थान से हम देखते हैं। तो इन 2 तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शारीरिक तथा भय की स्थिति को दर्शाने वाली वृश्चिक राशि तथा अष्टम स्थान कुंडली में मूलाधार चक्र का स्थान है। Now for English viewers, why the location of Mooladhara chakra is considered as Scorpio and 8th house of a birth chart? This is a question. So I will give you a logic for this too, because scriptures are based on logic. That's why I'm giving logic for everything. The Mooladhara chakra is associated with the feeling of fear in a person. Whenever a person is afflicted with a feeling of fear, then a person may urinate unknowingly. Just like if you scold a small child, he may urinate out of the feeling of a fear. In the same way, in astrology, the unknown fears are seen from the 8th house and Scorpio sign, exactly where we are talking about the location of Mooladhara chakra or base chakra. At the same time, we see the external genitals of a person from Scorpio sign and 8th house of a birth chart. So on the basis of these 2 logics, we can say that zodiac sign Scorpio and 8th house, which indicates lust and fear, which are the main characteristics of base chakra, could be its place in birth chart. So this is my logic behind saying that Mooladhara chakra resides in a 8th house Scorpio sign. Even Mr. H.N. Katwe has mentioned Scorpio sign as the location of
Muladhara Chakra in a Kundali, but he has not mentioned any logic behind this. He has just mentioned that Scorpio will be the location of a Muladhara Chakra. तो हिंदी विवर्स के लिए मूलाधार चक्र में दोष होने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का संबंध कुंडली के भावों से तथा राशियों से बनता है। कैसे बनता है आइए हम देखते हैं। अब हम यह देखेंगे कि मूलाधार चक्र अगर किसी कारण से असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति के शरीर में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा क्या वह सभी समस्याएं जो है उसको हम ज्योतिष के तौर पर देख सकते हैं क्या, इसको भी हम देखेंगे। और जो राशियां मैंने कही जैसे वृषभ, कन्या तथा मकर, क्या इनके साथ इन समस्याओं का संबंध बनता है, आज यह हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको ढेर सारे तर्क देने वाला हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि वृषभ, कन्या और मकर जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वह मूलाधार चक्र से संबंधित है। तो पहली समस्या है, अगर मूलाधार चक्र में कोई कमी होती है या उसका साइज छोटा हो जाता है या उसमें एनर्जी कम ज्यादा हो जाए तो कब्ज की समस्या व्यक्ति को उत्पन्न होती है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो कब्ज की परेशानी का संबंध मूलाधार चक्र से है, जिसे हम ज्योतिष में कन्या राशि से देखते हैं। क्यों देखते हैं कन्या राशि से? क्योंकि बड़ी आंत को कन्या राशि ही दिखाती है। आपके शरीर पेट में जो बड़ी आंत होती है वह कन्या राशि से देखी जाती है। कन्या द्विस्वभाव की राशि है तथा बड़ी आंत के भी दो मुख्य कार्य हैं। देखिए कन्या राशि भी द्विस्वभाव की है और जो बड़ी आंत मैं कह रहा हूं उसके भी दो मुख्य कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं उसके? शरीर में जो आवश्यक रस है उनको थामे रखना तथा अनावश्यक पदार्थों को बाहर फेंकना, यह बड़ी आंत के दो मुख्य कार्य हैं। तो इस प्रकार से कन्या राशि का संबंध मूलाधार चक्र से बनता है कब्ज की समस्या के द्वारा। तो यह हुआ मूलाधार चक्र का पृथ्वी तत्व की राशि कन्या के साथ संबंध। द्वितीय स्थान की अगर हम बात करें जहां वृषभ राशि होती है तो वृषभ राशि से हम मुंह तथा अन्न ग्रहण देखते हैं। वृषभ भी पृथ्वी तत्व की राशि है, तो आप क्या खाते हैं इस पर भी यह निर्धारित होगा कि आपको कब्ज की समस्या होगी या नहीं। तो इस प्रकार से दो राशियां इस समस्या के साथ जुड़ती है, क्योंकि आपके खाने पर भी यह तय होता है कि आपको पेट की कौन सी समस्या होने वाली है। दूसरी समस्या जो है मूलाधार चक्र की वह बताई गई है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन का संबंध जो है मूलाधार चक्र से है। संभ्रम को ज्योतिष में हम राहु तथा कन्या जो द्विस्वभाव की राशि है उससे देखते हैं। तो इस प्रकार से फिर से कन्या राशि मूलाधार चक्र से जुड़ रही है। लैंगिक समस्याएं, इनका भी संबंध मूलाधार चक्र से होता है। यह तीसरी बात है महत्वपूर्ण कि लैंगिक समस्याएं अगर किसी व्यक्ति में हो तो उसका संबंध मूलाधार चक्र से बनता है। लैंगिकता का कारक ग्रह है शुक्र। हम सभी जानते हैं कि शुक्र सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का सिग्निफिकेटर है, कारक ग्रह है। तो शुक्र जो होता है कन्या राशि में नीच का माना गया है। तो अगर किसी जातक का शुक्र जन्म पत्रिका में नीच का हो तो उसका स्पर्म काउंट लो आता है। आप अगर देखोगे तो उसका स्पर्म काउंट लो आता है अगर शुक्र नीच का है। मेरे पास 2-3 पत्रिकाएं हैं, इसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। इस आधार पर भी मूलाधार चक्र का संबंध जो है पृथ्वी तत्व की कन्या राशि से पाया गया तथा साथ ही शुक्र ग्रह भी यहाँ भी इन्वॉल्व हो गया है। तो अगर लैंगिक समस्याएं किसी को होती है तो यह बात आपको पत्रिका में देखनी चाहिए। Now for English viewers, problems that arises when there is a defect in Mooladhara Chakra are related to zodiac signs and houses of a birth chart. How? That we are going to see. Let's see. So first problem will be of a constipation. It is related with the Mooladhara Chakra, which we see from Virgo in astrology. Why? Because the large intestine is seen only from Virgo. Virgo is a dual sign and large intestine also has two basic functions. So Virgo being dual sign and the large intestine is also having two basic main functions that are it retains essential juices and expels unnecessary substances from the body. This is the relation of Mooladhara Chakra to the zodiac sign Virgo, which is of an
earth element. So we see mouth and food intake second, that is we see mouth and food intake from second house and sign Taurus. Taurus is also the sign of the earth element. Now what you eat will also determine whether you will have problem of constipation or not. So this way signs Taurus and Virgo are associated with Mooladhara Chakra or its problems. Second problem related with Mooladhara Chakra, base chakra, is confusion. Confusion is a problem that is related with Mooladhara Chakra. We also see confusion from dual nature sign Virgo and planet Rahu in astrology. So confusion is also not having a stability of thoughts. The zodiac signs Taurus, Virgo, Capricorn shows stability in the chart. So we can somehow say that confusion is also having relation with these three zodiac signs, and more particularly with Virgo. Third point is that sexual problems are also related to Mooladhara Chakra. The significator of sexuality in astrology is planet Venus. Venus is considered debilitated in the sign of Virgo. So if a person is born with debilitated Venus in a birth chart, then chances are his or her sperm count may be low. Even on this basis, the relation of Mooladhara Chakra is found with sign Virgo, which is the sign of earth element, and also with the planet Venus, the planet of lust and sex. Hold a second. अब हिंदी व्यूअर्स के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मूलाधार चक्र का स्थान वृश्चिक राशि अष्टम स्थान है, जहां से ज्योतिष में हम गुप्तांगों को देखते हैं। तो इस प्रकार से बाहरी गुप्तांगों से संबंधित समस्याएं भी वृश्चिक राशि से ही देखी जानी चाहिए। इस प्रकार से वृश्चिक राशि कुंडली में मूलाधार चक्र का स्थान भी निश्चित कर रही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि कमर दर्द। तो कमर दर्द का संबंध भी मूलाधार चक्र से ही है। ज्योतिष में कमर का हिस्सा फिर से कन्या राशि से ही देखा जाता है। कन्या में अगर शनि मंगल या मंगल राहु जैसे क्रूर ग्रहों की युति हो तो शायद वह आपको कमर दर्द दे सकती है। योगी जी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कौन सा नंबर का स्लाइड चल रहा है? सर स्लाइड वही चलेगा, थोड़ी देर में बदल जाएगा सर, 2 मिनट में बदल जाएगा सर। तो स्लाइड जी जी एक मिनट मेरे को बताएं, मैं शेयर करता हूँ, आप स्टॉप कीजिए, मैं शेयर करता हूँ। अच्छा शेयर कट हो गया, फिर से शेयर नहीं हो रहा है सर, फिर से इतना स्टॉप हो रहा है, लोगों को व्यूइंग तो चाहिए ना। नहीं देखिए अभी मैं अगर मूव करता हूँ तो मूव हो रहा है क्या सर? हाँ मूव हो रहा है ना। तो इसका मतलब आगे का स्लाइड नहीं आया है सर, इसका मतलब यही है कि आगे का स्लाइड नहीं आया है सर। अभी जैसे ही आगे का स्लाइड आता है जिससे संबंधित मैं जानकारी दूंगा तभी मैं वह स्लाइड आगे करूंगा। नहीं व्हाट व्हिच स्लाइड इज रनिंग, व्हिच नंबर स्लाइड इज रनिंग? 5 नंबर सर, 5 नंबर, 5 नंबर जो राइट साइड में नीचे दिया गया है वो स्लाइड अभी रन हो रही है। Should I continue speaking? Yeah, you can. दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने कही और जो है कमर दर्द का संबंध मूलाधार चक्र से है। तो मैंने बताया आपको कि कन्या राशि में अगर क्रूर ग्रह होते हैं तो कमर दर्द हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि मूलाधार चक्र की जो एनर्जी है कहीं कम ज्यादा हो रही है, तो इसको आप हील कर सकते हो। समझ में कमी यानी कि जो है आपके अंडरस्टैंडिंग में कमी हो तो भी इसकी यह समस्या जो है मूलाधार चक्र से देखी जाती है। ज्योतिष में बुध समझ का कारक ग्रह है। पृथ्वी तत्व की कन्या राशि से जो है बुध उच्च का होता है। तो समझ में कमी का मतलब है कि कन्या राशि में पाप प्रभाव हो या बुध आपका पीड़ित हो कुंडली में, तो भी आप में समझ की कमी हो सकती है। तो इस प्रकार से बुध ग्रह कन्या राशि दोनों मूलाधार चक्र से संबंध बनाते हैं। फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, another important thing is that the location of Mooladhara Chakra is zodiac sign Scorpio,
and the 8th house of a Kalapurush Kundali, from where we see external genitals of a person. So in this way, the sexual problems should also be seen from sign Scorpio, where the Muladhara Chakra is located. Fourth problem related with Muladhara Chakra is back pain. So back pain is related to Muladhara Chakra. In astrology, the part of West is seen again from sign Virgo. In the sign Virgo, if there exists the conjunction of planets like Saturn and Mars, or Mars and Rahu, then it may give problem of back pain to the person. Fifth point, that is lack of understanding, is also associated with Muladhara Chakra. So in astrology, Mercury is a significator of intelligence and understanding. Mercury is considered exalted in its own sign Virgo, which is of an earth element. So lack of understanding in astrology means that sign Virgo or the planet Mercury might be afflicted in your birth chart. So that is the reason why Mercury and sign Virgo are associated with Muladhara Chakra. For Hindi viewers, पांचवा जो यहाँ पे पॉइंट आता है, जो मूलाधार चक्र से संबंधित समस्या जताता है, वह है अज्ञान, व्यक्ति का अज्ञान। मूलाधार चक्र वासना का स्थान है, न कि ज्ञान का। इसको हमें जानना है। हमने अभी भी देखा कि शक्ति त्रिकोण हमने देखा, अधोमुखी जो है त्रिकोण हमने देखा इसके सिंबल में। तो मनुष्य में स्थित वासना को यह त्रिकोण दर्शाता है, और यह जो मूलाधार चक्र है वह ज्ञान का स्थान कतई नहीं है, यह वासना का स्थान है, उससे एकदम विरुद्ध स्थान है। इसलिए मूलाधार चक्र से संबंधित मकर राशि में बृहस्पति, यानी जिससे हम ज्ञान को देखते हैं ज्योतिष में, वह बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है। देखिए, अगर आप इसके संबंधों को जोड़े तो आपको सभी प्लैनेट्स के संबंध मूलाधार चक्र से कैसे बनते हैं आपको देखने को मिलेगा, और ज्योतिषीय तर्क में भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए, आलस्य जो छठा यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि आलस्य का संबंध मूलाधार चक्र से बनता है। तो वृषभ जो है एक राजसिक राशि है, इसमें चंद्र यानी मन उच्च का होता है। ज्योतिष में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति आराम पसंद या राजसिक हो सकता है। कन्या, अब हम नेक्स्ट राशि पे जाते हैं। कन्या नैसर्गिक कुंडली में षष्ठ स्थान की राशि है। तो षष्ठ स्थान से हम श्रम, सेवा, मेहनत इन सबको देखते हैं। इसलिए सुख का, ऐश्वर्य का, हेलो, यस सर, ओके, इसलिए सुख का, ऐश्वर्य का कारक ग्रह जो है शुक्र, जो मूलाधार से जुड़ी पृथ्वी तत्व की कन्या राशि में है, नीच का हो जाता है, क्योंकि वह आराम प्रसन्न ग्रह है, आलस्य का ग्रह एक तरह से हम कह सकते हैं। तो पृथ्वी तत्व के मूलाधार चक्र में आकर के अगर, तो फिर हम कह क्या सकते हैं, किसी का अगर शुक्र नीच का है बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में, तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति आलसी भी हो सकता है, चाहे वह आलस शारीरिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे हो। अब देखते हैं तीसरी राशि का आलस्य से कैसे संबंध बनेगा। मकर जो है कर्म स्थान की राशि है, तथा किसी व्यक्ति का कार्यालयीन कामकाज हम यहीं से देखते हैं। कर्म स्थान की राशि मकर में जीव कारक ग्रह बृहस्पति, यानी शरीर में स्थित प्राण शक्ति, जीव कारक क्यों कहा गया है बृहस्पति को, क्योंकि वह आपके शरीर में स्थित प्राण शक्ति को दर्शाता है, वह भी यहाँ पर आकर के नीचगत कहलाया गया है। तो ऐसा व्यक्ति आपको हो सकता है कि आपको यह व्यक्ति आलस्य को लिए हुए देखने को मिलेगा, जिसका बृहस्पति मकर में नीच का हो रहा है। तो इंग्लिश व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, 6th point is ignorance. Muladhara chakra is the place of lust and not of a knowledge. That is why in Jupiter, the Jupiter, which is a significator of knowledge, gets debilitated in the zodiac sign Capricorn, which is strongly associated with Muladhara chakra. So there is no place for knowledge. It is Muladhara chakra is a place of lust of a person. Now it is said that laziness is another problem which is associated with Muladhara chakra.
So we have logically seen that how the signs Taurus, Virgo, and Capricorn are associated with Mooladhara Chakra, that is a base chakra. Laziness is a problem associated with Mooladhara Chakra. Moon, which signifies your manas, that is your mind. In astrology, it gets exalted in sign Taurus. Such a person may not like to work, and he may be always in a search of comfort. Another sign which is related with Mooladhara Chakra, that is Virgo, is the 6th house sign in the Kalapurush Kundali. From 6th house, we see labor or service or hard work done by a person. And that is why the planet Venus, the significator of comfort, gets debilitated in the sign of Virgo, which is associated with Mooladhara Chakra, the sign which is associated with Mooladhara Chakra. So if Venus is debilitated in a horoscope, then the person may be lazy, maybe mentally or physically. Capricorn is another sign, third sign, which is also related with Mooladhara Chakra. Now, let's see how laziness is associated. Hello. If the planet Jupiter is placed in Capricorn sign, then it also gets debilitated. Jupiter being Jiva Karaka planet, it shows Prana Shakti or a life force in your physical body. So if Jupiter is placed in Capricorn, then we may say that a person may be lazy because lack of Prana Shakti and all that. हिंदी विवर्स के लिए जो छठा पॉइंट है यहाँ पर अस्थिरता जो है मूलाधार चक्र से देखी जाती है। हमने देखा कि स्थिरता मूलाधार चक्र का मुख्य गुणधर्म है। तो अस्थिरता क्या हुआ? स्वाभाविक तौर पे अस्थिरता जो है उसमें निर्माण होने वाली समस्या हुई। वृषभ, कन्या एवं मकर तीनों पृथ्वी तत्व की तथा अर्ध त्रिकोण की राशियां हैं जो व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तथा शारीरिक स्थिरता प्रदान करती है। हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली में भौतिक उपलब्धियों को, आर्थिक आय को इन्हीं राशियों से देखते हैं। तो अगर यह तीन राशियां पीड़ित हो या इनमें नीचगत ग्रह हो या राशियां पाप दृष्टि में हो, इनके स्वामी पाप पीड़ित हो, तो व्यक्ति में अस्थिरता का गुण आपको देखने को मिल सकता है और यही अस्थिरता का गुण मूलाधार चक्र की समस्या के तौर पर बताया गया है शास्त्रों में। For English viewers, instability is another problem which is associated with Mooladhara Chakra. We have seen that stability is the main feature of Mooladhara Chakra. Zodiac sign Taurus, Virgo, and Capricorn are the three zodiac signs of the earth element which represents Mooladhara Chakra in astrology, which gives all these three signs, which gives financial and materialistic stability to the person in his life. We analyze the materialistic growth of a person from these three zodiac signs in a birth chart, or from the numbers 2, 6, and 10, houses 2, 6, and 10. We analyze materialistic growth of a person. So if these three zodiac signs are afflicted in a chart, a person may face instability in his professional life and materialistic growth. So the feature of instability is strongly associated with Mooladhara Chakra or base chakra in Shastras. This way, astrologically, looking at these three signs, we can analyze if energy that is residing in a Mooladhara Chakra is stable or not. So if these signs are afflicted, we can say that the person's Mooladhara Chakra is not stable or energy is fluctuating. हिंदी विवर्स, अब हम मूलाधार चक्र में दोष होने पर उत्पन्न होने वाली शारीरिक समस्याओं को देखेंगे। देखिए, हड्डियों, नाखूनों, दांतों, बालों, स्नायुओं का बाहरी आवरण, पेशियों का ऊपरी आवरण, इनमें जो समस्या या रोग उत्पन्न होता है तथा कमजोरी आपको अगर मालूम पड़ती है, तो यह लक्षण पृथ्वी तत्व की कमी के कारण आपको यह महसूस हो सकता है। आपके शरीर में अगर पृथ्वी तत्व की कमी हो जाए तो इन सभी बातों के लिए आप जो है आपको
परेशानी या समस्या उत्पन्न हो सकती है। सभी प्रकार के धान, दलिया, सब्जियां जो जमीन के अंदर तैयार होती है, जैसे आलू, मूली, शकरकंद दैट इज स्वीट पोटैटो, गाजर, चुकंदर यानी बीट रूट, इन सभी से पृथ्वी तत्व आपको प्राप्त होता है। तो आप क्या कर सकते हो? जी योगेश जी, सॉरी टू इंटरप्ट, जी थोड़ा सा हमें टाइम की हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। जी तो हम क्या करते हैं ना कि आपका जो बाकी का है वो हम लोग फिर एंड में रखेंगे। जी जी जी, कोई बात नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पूरा भी सेशन एंड में रखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसको मैं थोड़ा अभी क्या बाकी करता जैसे हूँ अभी सर, आपका 5वें जी। स्लाइड तक हो गया ना, तो रेस्ट ऑफ अदर स्लाइड्स वी कैन कीप जी। इट एट द एंड ऑफ सेशन, कोई बात क्योंकि नहीं, दूसरे स्पीकर अभी वेट कर रहे हैं बिल्कुल आपके बिल्कुल बाद सर, वाले। नो इश्यूज। ठीक है। मैं एंड सर, ये जो भी लेक्चर आपको ना, आप इसको इंग्लिश में ही करिए, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पीपीटी हिंदी में है। अच्छा, व्यूअर्स को एक बार मैं पूछ लूं कि क्या वो बोर हो रहे हैं या उनको जानकारी मिल रही नहीं है? सर, व्यूवर्स का तो ठीक है, व्यूवर्स तो वो तो They बोलेंगे can आप 2 घंटा लीजिए, टेल मी पर इन 2 चैट घंटे तक बॉक्स, नो बाकी स्पीकर वेट नहीं करेंगे प्रॉब्लम। ना अभी। नहीं 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 नहीं, आई व्यूवर्स का अंडरस्टैंड, आई ओपिनियन अंडरस्टैंड डजंट मैटर। सर। मैं 2 मिनट दीजिए, मैं ये योगेश, कंप्लीट कर दूं। we have to respect other speaker also. We have to करेक्ट respect करेक्ट करेक्ट, others. So नो they are, इश्यू सर, नो इश्यू। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं ये पूर्ण कर दूं, ये कंप्लीट कर दूं। please kindly complete in 2 minutes में finish कर दीजिए, please 2 request मिनट you. में फिनिश करता हूँ, फिर ब्रेक करके नया सेशन लेंगे सर, please. कोई बात नहीं। हाँ, तो जो है आप जो है आपके अन्न के माध्यम से भी मूलाधार चक्र को आप संतुलित कर सकते हो। तो अगर किसी को लैंगिक समस्याएं हो तो उन्हें आहार अपनाकर मूलाधार चक्र को संतुलित करना चाहिए। इंग्लिश व्यूअर्स के लिए, now we will see the physical problems that arises when there is a defect in Mooladhara chakra are the problems in outer covering of bones, nails, joints, hairs, muscles, etc. are the symptoms of lack of earth element in a physical body of a person. So all types of solid grains, oatmeal, vegetables which grow underground such as potato, radish, sweet potato, potato, carrot, beetroot, and are full of earth element. So you should eat these vegetables, grains, and fruits to balance your Mooladhara chakra. The Mooladhara chakra can also be balanced through all kinds of condensed fruits. So if someone has a sexual problem, they should adopt this diet to balance the Mooladhara chakra so that their sexual problems can be reduced. So we will continue in next session whenever Saptarshi's team will allow me to take next session. I will continue with my next slide. Okay, fine. Thank you, sir. Sir, Maharaj, are you Thank you, ready? sir.